यस बेटा जी, देखो इधर जरा बोर्ड पे। यस, देयर इज अ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम एंड here is a body of mass 1000 किलोग्राम। इस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा, बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2। यस, which body will have more inertia, body number 1 or body number 2? बॉडी नंबर 2। जी यस बेटा जी, which body has more inertia, body number 1 or body number 2? बॉडी 2 सर, बॉडी 2। ओके शाबाश। बॉडी 2। जिस बॉडी का ज्यादा इनर्शिया होगा उसका मास भी क्या, जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। सो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 118, which of the following has more inertia? नंबर 1 बोल रहा है a rubber ball and a stone of the same size। वन इज रबड़ बॉल और उसी साइज का एक स्टोन है, तो मास किसका ज्यादा होगा? स्टोन। किसका ज्यादा होगा? स्टोन का। यस सर, स्टोन ऑफ द सेम साइज। हाँ यस। पार्ट बी, a bicycle or a train? ट्रेन। नंबर 3, 5 rupee coin or 1 rupee coin? 5 rupees। 5 rupee coin। Yes. 5 rupee coins। बस बेटे क्वेश्चन नंबर 2, in the following examples try to identify the number of times the velocity of the ball changes। कोई बॉल है, फुटबॉल, ठीक है, तो आपने बताना है भी नीचे जो स्टेटमेंट दी है उसमें कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई है और किस किस ने इसकी वेलोसिटी चेंज की है ना। सो स्टेटमेंट है बेटे, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। तो फर्स्ट जो प्लेयर है उसने क्या किया, ही किक द बॉल, इट मींस ही चेंजेस द वेलोसिटी। सो फर्स्ट प्लेयर, यहाँ पे एजेंट कौन है जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है? फर्स्ट प्लेयर ऑफ टीम चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड आगे कह रहा है बेटा another player of his team who kicks the football towards the goal। और जो दूसरा प्लेयर था उसने फुटबॉल को गोलकीपर की तरफ को किक किया। तो सेकंड प्लेयर ऑफ द टीम, ही इज द एजेंट, he changes the velocity by kicking the ball, okay, and the goalkeeper of the opposite team collect the football। गोलकीपर ने उस फुटबॉल को अपने पास कलेक्ट कर लिया, पकड़ लिया, उसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया। तो तीसरी बार किसने वेलोसिटी चेंज की उसकी? गोलकीपर। एंड किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। और गोलकीपर ने इसको दोबारा किक कर दिया। तो कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई? 4 टाइम्स। सर 4 टाइम्स। यस, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट प्लेयर ने, फिर सेकंड प्लेयर ने, फिर गोलकीपर ने, फिर गोलकीपर ने ना। Yes, today next question number 3. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branches. Yes. हमने पढ़ा होगा, मैंगो वाला पढ़ा होगा हमने। It is due to the inertia of rest. Very good. Yes. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward direction when it accelerates from rest? We have discussed horse and rider problem, है ना? We have discussed. So when a running bus stops suddenly, then what happens? Push. Yes, with the bus, running bus, our body was also in motion, but our feet, they were at rest on the body of the bus. When the bus stops, our feet also stops and our body tends to remain in motion.
So therefore we fall in forward direction. Yes, beta ji, when a running bus suddenly stops and when a stationary bus suddenly starts or moves, then we accelerate in backward direction. Okay? Why? Due to inertia of direction. Inertia of rest. When the bus is stationary, our body is also stationary. But when the bus comes in motion, then our backside also comes in motion, but our body that tends to remain at rest. So therefore, this is inertia of rest. And why we fall in forward direction? That is the inertia of motion. That is the inertia of motion. Okay, bete. Now, next article 9.4, second law of motion. Very, very important, beta. देखो. Sir, the third question है वो समझा दो. Explain why some of the leaves may get detached. किया था मैंने. When we vigorously shake the branches of a mango tree, then the mangoes they fall down because जो leaves हैं और जो mangoes हैं they are at rest. But when we shake the branches vigorously, then branches they come in rest. Sorry, they comes in motion. Because हमने branches के ऊपर force लगाई है, tree उसके ऊपर leaves और mangoes के ऊपर नहीं लगाई है. Okay? तो branches होती है तो motion में आ जाती है, लेकिन mangoes and leaves जो होती है, ठीक है, वो जो होती है वो motion में नहीं आती, इसलिए वो detach होकर नीचे गिर जाती हैं. They tends to be at rest. Yes, in second law of motion. Second law of motion, Newton's second law of motion. It is also called second law of motion. देखना बेटे बड़े ध्यान से. यहाँ पे पहले हम एक टर्म यूज करेंगे मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? देखो इधर. Here is a body of mass 5 kilogram. And it initially moving with a velocity u, and when I apply force on this body of mass 5 kilogram, when apply force F, 5 into m ले लो इसको, okay, m kilogram, इसका mass m kilogram है. When I apply force on the body, its velocity changes to v. इसकी वेलोसिटी u से v हो गई, लेकिन मास तो चेंज हो नहीं सकता ना. ओके, तो बेटे यहाँ पे जो है इसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है? दैट इज इक्वल टू mu, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट क्या बोलो शाबाश? mv. अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे मास इसका 5 है और वेलोसिटी भी इसकी 5 है, तो मास ऑफ वेलोसिटी इनटू दिस इनिशियल वेलोसिटी एंड मास का जो प्रोडक्ट हुआ दैट इज इक्वल टू 25. और सपोज करो मास तो यहाँ पे 5 रहेगा, लेकिन वेलोसिटी अगर यहाँ पे 10 हो गई तो इट इज इक्वल टू 50. तो देखो फोर्स अप्लाई करने से इस बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी हियर दैट इज 25, और फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी का जो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 50 है ना. This product of mass and velocity of a body is called momentum. Is called momentum. Okay, is called momentum. So therefore, what is momentum? It is a physical quantity denoted by small p and is measured as the product of mass and velocity of the body. The physical quantity denoted by small p and is measured as the product of mass of the body and its velocity. So what is the unit of momentum? Momentum का यूनिट हो गया बेटे, मास का यूनिट क्या होता है बोलो शाबाश? किलोग्राम. और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. Okay, therefore the unit of velocity, sorry, momentum is equal to
kilogram meter per second. It is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. Excuse me, sir. Yes, Sudha. सर एक बार मोमेंटम की डेफिनेशन रिपीट कर दो. बेटे कहाँ रहते हो? Yes, momentum of a physical quantity of a body is defined as the product of mass of the body and its velocity. Product of the mass and velocity of the body. Yes बेटा जी देखो इधर. अब यहाँ पे बॉडी जो थी इसका मास कितना था बोलो शाबाश, m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u. तो ये जो इसका मोमेंटम यहाँ पे है इसको बोलेंगे हम इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल टू mu. और जब बॉडी के ऊपर फोर्स F लग गई और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो यहाँ पे इसका मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया p2 mv. Okay. Okay, so therefore what is the change in momentum? Change in momentum. बोलो बेटा शाबाश. That is equal to final momentum minus initial momentum, or it is equal to P2 minus P1, or it is equal to mv minus mu, or m common लेके it is equal to v minus u. ओके बेटा जी. राइट डाउन statement of second law of motion. Write down. Second law of motion states that the rate of change of momentum of an object, the rate of change of momentum of the object is proportional to the applied unbalanced force. Proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. So therefore बेटे आगे लिखो. Prove that force is equal to mass into acceleration. Yes, write down. According to second law of motion,
We know force is directly proportional to rate of change of momentum. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, और F इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू m इंटू b माइनस u अपॉन t. यहां पे बेटे जरूर लिखना अपने वेयर स्मॉल k इज sign of proportionality, where small k is sign of proportionality, और F is equal to k into m. अब बेटे मोशन चैप्टर में पढ़ा था हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन. Yes, is equal to a bracket with another because acceleration is equal to b minus u upon t. So you let this elect equation number 1. Write down. इसके बाद बेटे बड़ा जरूरी है लिखना. ओके, write down the units of mass, the units of mass ब्रैकेट में लिख लो बेटे किलोग्राम kg, and acceleration, the units of mass and acceleration are so chosen such that the value of k is equal to 1. Therefore, equation 1 becomes F is equal to ma. This is equation number 2. Or this is the mathematical form of second law of motion. Write down. This is the second mathematical form of second law of motion. Yes, bete. Write down next. State the, define the SI, capital S, capital I. Define the SI and CGS. SI and CGS system, CGS units of force. Yesterday, the SI unit of force is Newton, 1 Newton or 1 Newton. Okay, and the CGS unit. सर बहुत लाइट दिख रहा है. हाँ जी सर बहुत लाइट दिख रहा है. लाइट दिख रहा है. यस. ओके बेटे गिल्ला होता बोर्ड ना तो हो जाता है. 1 मिनट. Yes, 1 Newton now. यस सर अब दिख रहा है. Or 1 Newton. And CGS unit is called Diane, D-Y-N-E, 1 Diane. 1 Diane.
So we know force is equal to mass into acceleration. Also here force is equal to mass into acceleration. So therefore 1 Newton force की जगह आएगा 1 Newton is equal to 1 किलोग्राम into acceleration की जगह आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे आएगा बेटे फोर्स की जगह 1 डायन इज इक्वल टू मास की जगह आएगा 1 ग्राम इंटू एक्सलेशन की जगह आएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके ओके. डिफाइन 1 न्यूटन एंड 1 dian. So therefore what is 1 Newton? 1 Newton, a force is said to be 1 Newton if वेट स्टूडेंट, मुझे लगता है कि सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं. वेट कीजिए. ओके ओके मैं बात किया अभी देखा मैंने. ओके ओके मैं ओके ओके. हाँ जी बेटा जी. यस, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? Yes, sir. A force is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. Okay? Okay. And what is 1 dian? Yes, यही पे डिफाइन कर रहा हूं बेटे मैं. यस, 1 dian, a force is said to be 1 dian if it produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. Okay? सर इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी? बेटे यूनिफॉर्म है. ओके सर. वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है भी फोर्स कैसी है ना. वेरिंग फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है. यस बेटे, राइट डाउन नेक्स्ट. डिराइव द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन. Derive the relation between Newton and Dian. Yes, we know 1 Newton is equal to. सर मैंने अटेंडेंस फॉर्म सेंड कर दिया चैट बॉक्स में. मैम ने अटेंडेंस फॉर्म जो है भेजा. ठीक है, आप अटेंडेंस करो फिर जल्दी.
Yes, 1 Newton is equal to 1 kilogram into 1 meter per second square. I can write 1 Newton is equal to 1000 gram into, because 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा जी? Yes, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, और इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 3 जीरो बेटे ग्राम की आ गई और 2 जीरो सेंटीमीटर की. ओके, इंटू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. बेटे ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? यस yes बेटे, it is equal to 1 Dalton. So therefore 1 Newton is equal to 1 lakh Dalton, or 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 Dalton. Yes today, write down next very important physical quantity, impulse. Impulse IMPULSE, impulse. IMPULS, impulse. It is denoted by I, capital I. It is a vector quantity. It is a vector quantity. Write down impulse received. Impulse received during an impact. Impulse received during an impact. Impulse received during an impact is defined as the product of average force and the time for which the impact lasts long, LASTS, lasts long, or I is equal to average force into time. This is equation number 1. We know force is equal to M into V minus U upon T, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपके पास क्या आ गया? एवरेज फोर्स into time is equal to M into V minus U, or it is equal to MV minus MU, or it is equal to final momentum minus initial momentum. Okay, and from equation number 1 we have F average into time is equal to impulse.
So therefore impulse is equal to product of average force into time or change in momentum. Change in momentum. और जो आपने लिखा है I इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स टू P2 माइनस P1 P2 बेटा, यस। फाइनल तो सर मोमेंटम यहाँ पे माइनस। ये सर अगर बीच में एवरेज फोर्स इनटू टाइम ना लिखें, इम्पल्स इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम लिख दें, वो भी चल पड़ेगा बेटे, यस। लेकिन मैं तो आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब देखो इधर सुनो, आपकी बुक के ऊपर देखो, एक क्रिकेट का प्लेयर बॉल को कैच कर रहा है ना। यस सर। अब देखो बेटे, जो फर्स्ट वाला फिगर है, देखना मेरी तरफ देखो इधर। अगर बॉल मेरे पास आती है और मैं अपने हाथ ऐसे रखता हूं और बॉल क्रिकेट के ऊपर हाइट से आ रही है, तो बॉल और मेरे हाथ के बीच में जो इंपैक्ट होगा, मिलन होगा, कोलिजन होगा, उसका टाइम कम होगा या ज्यादा होगा? फिर कम होगा। सर कम होगा। हाँ, तो बेटे जब टाइम कम होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा होगी, इसलिए मेरे हाथों को सट लगेगी, है ना। जितना मैं टाइम को इंक्रीज करूंगा फोर्स उतनी कम लगेगी। इसलिए देखो इधर, क्रिकेट का जो प्लेयर होता है वो बॉल्स को यहाँ पे हाथ लगाता है, लेकिन उसको कैच करने का टाइम हाथ को नीचे ले जाता है ना, वो पीछे को ऐसे जाके कैच करता है, और फिर उसको टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है बॉल का और हाथ के मिलने का टाइम जो है उसको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। इसलिए उसको फोर्स जो है या सट उसको कम लगती है। ओके, और भी देखा होगा बेटा आपने, लिसन, आपके घर में जब आपने मोबाइल लिया होगा नया, या आपने फ्रिज लिया होगा, टीवी एलईडी वगैरह लिया होगा, या किचन में आप लेके आते हैं, डाइनिंग सेट लेके आते हैं, या टम्बलर्स लेके आते हैं, तो सारे के सारे थर्मोकोल में डाले होते हैं ना। थर्मोकोल में पैक किए होते हैं, क्यों? क्योंकि जब देखो एक फैक्ट्री से आते हैं, आपके घर तक पहुंचते हैं, तो कितनी बार इनकी लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, और कितनी बार ये टकरा जाते हैं एक दूसरे से। ताकि बेटे ये टकरा जाएं तो जो कोलिजन होगा, जो इंपल्सिव फोर्स होगी, जो इंपैक्ट होगा, थर्मोकोल क्या हो जाता है, बोलो शाबाश, थर्मोकोल टकराने का टाइम बढ़ा देता है। इसलिए जो आपका मोर कॉस्टली आइटम है उसको वो ब्रेक नहीं होती, उसके ऊपर फोर्स कम लगती है, इंपल्सिव फोर्स जो है वो कम हो जाती है, एंड टाइम ऑफ इंपैक्ट जो क्या होता है, ज्यादा। अच्छा और सुनो, अगर कोई आपकी थाइस के ऊपर आपको डंडा मारे, और वही डंडा अगर हेड के ऊपर, स्कल के ऊपर मारे, तो सट कहां ज्यादा लगेगी? यस, स्कल। हाँ, क्योंकि स्कल देखो हार्ड बहुत ज्यादा है, तो टाइम ऑफ इंपैक्ट जो होगा वो बहुत क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो थाइस है वो थाइस मोटी है, तो जब थाइस को डंडा पड़ेगा तो हमारा जो मास है वो अंदर को थर्मोकोल का काम करता है ना, इसलिए वहां पे कम इंजरी होती है। गाड़ियां देखो, गाड़ियों का जो इंजन होता है, गाड़ियों की जो चैसी होती है, गाड़ियों की जो बॉडी होती है कार्स की, वो ऐसे मटेरियल से बनाई होती है कि जब कार आपकी किसी दूसरी कार से या ट्री से या वॉल से टकराए, तो टकराने का जो टाइम है वो ज्यादा हो जाए। अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा होगा तो अंदर जो सवारियां बैठी हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको सट कम लगेगी, उनके ऊपर फोर्स कम लगेगी। ओके, ये जो टाइम होता है, टाइम ऑफ इंपैक्ट को इंक्रीज करने के लिए, आजकल सुना होगा आपने भी, गाड़ियों में बैलून लगे होते हैं ना, क्योंकि जब गाड़ी टकराती है तो पैसेंजर और गाड़ी की बॉडी के बीच में बैलून जो होता है क्या होता है, उसमें हवा भर जाती है, तो जब हमारी स्कल उस